Hello students, we are seeing Science of class 8, unit number 2, Biology, in which we are going to study chapter 8 and 9, that is cell, structure and function and reproduction. Okay, so from today we are going to start chapter number 8, that is cell, structure and function. Okay, so before starting the cell, structure and function, we are going to focus on living organisms. Living organisms means what? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब है लिविंग थिंग्स. ओके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब है लिविंग थिंग्स. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट लिविंग थिंग्स, व्हाट यू कैन से अबाउट लिविंग थिंग्स? अगर मैंने आपको बोला कि टेल मी समथिंग अबाउट लिविंग थिंग्स, व्हाट यू कैन से? यू कैन टेल मी अबाउट that there are variety of living organisms in our surrounding. Ant is a living organism, banyan tree is a living organism, elephant is living organism. Okay, and one more thing we can say that there is a large amount of variety in living organism. जो living organisms है हमारे surrounding में, they show a lot of variety in them. The variety in living organism we call it as biodiversity. Okay, the variety in living organism is called as biodiversity. What is the meaning of biodiversity? Bio means related to living thing and diversity means differences or variety. So when we are talking about biodiversity, it means that the living organisms which are found in our surrounding, they do not have much similarities between them. For example, if I told you to find some similarities between, for example, a cockroach and elephant, what you can say? Is there any similarity between them? Their structure is same, their number of legs, number of size, एक बहुत छोटा एक बहुत बड़ा है साइज में. ओके, एक को विंग्स है दूसरे को विंग्स नहीं है. There are large number of differences between them. In the same manner, जितने भी living organisms आपके surrounding में हैं, they have lot of differences between them. They have what? They have lot of differences between them. बहुत सारे differences उनमें हैं. But there is one basic similarity between the living organism. What is there? That similarity is सारे के सारे living organism except few. Few मतलब वो भी एक लंबी category है. But there are one basic thing is common about living organism, and that is what? That is they are having a cellular structure. Okay, what is this? That they are having a cellular structure. Cells से बनी हुई है. Every living organism is made up of what? Every living organism is made up of cell. Living organism की body कैसे बनी हुई होती है? It is made up of cell. That is the similarity. There is a lot of variety, but this thing is common in all living organism. Okay, so what is it? All living organisms have a cellular structure. All living organisms have a cellular structure. You can say that living organisms, all living organisms are made up of cells. All living organisms are made up of cells, means they are having a cellular structure. All except viruses. All except viruses. Viruses जो है, they do not have cellular structure. Viruses की body में cells नहीं होती है, सिर्फ थोड़ा सा genetic material they have. When they enter in our body, they use our cell. हमारी जो सेल्स हैं उनको यूज करके वो अपनी बॉडी के फंक्शंस जो है परफॉर्म करते हैं. सो वायरसेस आर sometimes means when they enter our body, they become active, they become live. When they are present in the surrounding, they are considered as dead.
है ना। एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में वायरसेस प्रेजेंट है, वो अपना नंबर बढ़ा नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपनी बॉडी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए सेलुलर स्ट्रक्चर उनके पास नहीं है। सो दे आर ऑलमोस्ट डेड इन द सराउंडिंग, बट व्हेन दे एंटर इनटू द होस्ट बॉडी they can use our body structure and they become what? Alive. Depending on this knowledge, we can divide living organisms into two categories. Living organisms are divided into two categories. The first one we call as living organisms. We can say it as simply cellular organisms. Cellular organisms. And another category is acellular organisms. Acellular organism में आपको ध्यान में रखना है what? Viruses. Okay? और all living organisms except viruses, they come in the category of cellular organism. For example, fish you can write, cockroach you can write, human you can write, neem tree you can write. Okay, all organisms they come in the category of what? Cellular organisms. Okay, ये जो chart है, organisms they have cellular structure. All living organisms are made up of cells except virus. Living organisms depending on the cellular structure are divided into two categories, cellular organisms and acellular organisms. Okay, so examples लिखो उनके cellular और acellular organism के examples आपको लिखने हैं, इतना लिख लो, ठीक है। उसके बाद में मैं ये क्या करूंगी, रब करूंगी, ठीक है। डन, कैमरा पॉज करो और लिखो। ओके, now before studying the meaning of cell, we are going to consider the discovery of cell. Discovery of cell. Cells किसने डिस्कवर किए, या कौन कौन से साइंटिस्ट यू कैन से दैट दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डिस्कवरी ऑफ सेल। तो सबसे पहले इसमें आता है 1665 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नाम का एक साइंटिस्ट था। ये साइंटिस्ट ने क्या किया, इसने सेल ऑब्जर्व की। सेल मतलब क्या, इसने एक्चुअली सेल नहीं ऑब्जर्व की, इसको क्या ढूंढना था, ही वॉज फाइंडिंग समथिंग। उसने क्या किया, खुद का माइक्रोस्कोप डिजाइन किया, खुद का माइक्रोस्कोप उसने डिजाइन किया और उससे रिलेटेड उसको क्या करने थे, ही वॉज डूइंग सम रिसर्च। ओके, और उसने उससे सबसे पहले क्या ये किया, सर्च किया। ही सर्च व्हाट, जो वुड के ऊपर का जो ऊपर का बार्क होता है ना, ब्राउन कलर का कवरिंग, बार्क ऑफ ट्री, या यू कैन से वुडन कॉर्क। उसको कुछ भी, जैसे हमें क्यूरियोसिटी होती है ना, कोई नई चीज आई हमारे हाथ में, जैसे मोबाइल आया, कैमरा की रिकॉर्डिंग करनी, अपन किसी भी चीज की फोटो निकाल के देखते हैं ना। इन द सेम मैनर उसने क्या किया, उसका प्राइमरी माइक्रोस्कोप उसने डिजाइन किया, तो उसने उसमें से क्या ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व द बार्क ऑफ ट्री एंड व्हाट ही फाउंड that bark of tree, it was made up of some small hexagonal shaped blocks. He observed that there are some blocks are present in it. उसको ऐसा स्ट्रक्चर सेल के अंदर मिला, जैसे हनीकॉम्ब में होता है ना, वैसे छोटे छोटे ब्लॉक्स उसको क्या मिले, वो बार्क जो है इट वॉज मेड अप ऑफ स्मॉल ब्लॉक्स। इतना उसने ऑब्जर्व किया एंड एवरी पार्ट वॉज लुकिंग लाइक ए रूम, एक टाइनी रूम जैसे ये दिखने वाला था। तो रॉबर्ट हुक वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु कॉइन्ड द नेम सेल, कॉइन्ड द नेम सेल। तो ये जो सेल नाम था, ये सेल नाम किसने इन्वेंट किया, आप बोल सकते हो कि दिस नेम सेल वॉज इन्वेंटेड बाय रॉबर्ट हुक।
And what he observed? By using his microscope, he observed the cells of what? Bark of a tree. Why he gave the name cell to that structure? Because it appeared like a tiny room. Cell का मीनिंग होता है एक tiny room, जहाँ पे prisoners को रखा जाता है. Prisoners को जिस रूम में रखा जाता है वो रूम को बोला जाता है, क्या बोलते हैं उसे? That is called as a cell, है ना? सेल में रखा है, पुलिस के सेल्स होते हैं. तो सेल का मतलब है बहुत छोटी रूम. तो उसको छोटी रूम जैसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिला माइक्रोस्कोप के अंदर. सो ही नेम्ड देम एज व्हाट? एज ए सेल. ओके. सो इन 1665 रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल. Which cell he observed? He observed the cells of bark of a tree and he observed dead cells. He means Robert Hooke observed dead cells. डेड सेल्स जो है ये सबसे पहले इसने क्या किए? ऑब्जर्व किए. किसने? रॉबर्ट हुक ने. उसके बाद में दैट माइक्रोस्कोप वाज नॉट वेरी मच पावरफुल. बहुत ज्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप उसके पास नहीं था. सो इट वाज ए वेरी प्राइमरी माइक्रोस्कोप. तो वो प्राइमरी माइक्रोस्कोप के अंदर से रॉबर्ट हुक को जो स्ट्रक्चर देखने को मिला उसे कुछ दूसरा स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिला. ही ओनली ऑब्जर्व व्हाट? He only observed a honeycomb like structure. I am going to show you the diagram of this structure. See, can you see the diagram? छोटे छोटे होल्स आपको दिख रहे हैं उसमें. Okay, that was the first cell observed by Robert Hooke. Okay, that was the first cell observed by Robert Hooke. ठीक है. He observed the dead cell. Dead cell. After that, the second scientist in 1838, जब तक के पावरफुल माइक्रोस्कोप डिजाइन नहीं हुआ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप या ऐसे माइक्रोस्कोप जिसकी क्या बोलते हैं उसको, जिसकी रिजॉल्विंग पावर बहुत ज्यादा है, ऐसा माइक्रोस्कोप इन्वेंट जब तक के नहीं हुआ तब तक के उसको सेल्स में अंदर क्या क्या कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं वो कोई ऑब्जर्व कर सका क्या? नहीं कर सका. उसके बाद में 1838 में एक शिल्डन नाम का साइंटिस्ट, स्पेलिंग देखो, शिल्डन. दिस साइंटिस्ट, स्पेलिंग बराबर है क्या? यस, एल पहले चाहिए. ओके. दिस साइंटिस्ट फर्स्ट ऑब्जर्व. 1 minute, I am not sure about the spelling. That is the problem. Schildeni. Schildeni. Okay. This scientist, जो भी उसका नाम हो, Schildeni, he observed that all plant structures, जितने भी plant structures है, वो plant structures सारे के सारे cells से बने हुए होते हैं. So the second discovery was made by Schildeni. He said he observed that all cells, all animals, all plants are made up of what? Cells. सारे के सारे जो एनिमल्स है, जितने एनिमल्स आपके सराउंडिंग प्लांट्स, सारे के सारे प्लांट्स जो है उनकी बॉडी कैसे बनी हुई होती है? सेल्स से बनी हुई होती है. दैट वाज एक्सप्लेन बाय शिल्डन. उसके बाद में नेक्स्ट साइंटिस्ट SCHWANN, Shawn. Schildeni and Shawn. Shawn proposed that all animals are also made up of cells. All animals are made up of cells. Okay? ये किसने स्टेप फॉरवर्ड किया? This was step forward by Schildeni and Shawn, and these two scientists together they put forward a theory. ये जो दो साइंटिस्ट है, कौन से? Schildeni and Shawn, they put forward a theory. The theory is known as what? The theory is known as the cell theory of life. This was proposed by whom? This was proposed by Schildeni
and Sean. ओके, शिल्डन एंड शॉन, ये दो साइंटिस्ट ने द सेल थ्योरी ऑफ लाइफ की प्रपोज की. दैट वी आर गोइंग टू सी फर्दर. लेकिन ये पॉइंट्स जो है वो पहले आपको क्या करने हैं, लिखने हैं. क्या देखो, डिस्कवरी ऑफ सेल स्टार्टेड फ्रॉम सर रॉबर्ट हुक इन 1665. द फर्स्ट सेल was observed by Sir Robert Hooke in 1665. Second, he observed the cell of a bark of tree. Third, he observed that the bark of tree, when observed through microscope, consists of small honeycomb-like parts. Okay, he named the structure as cell. Means Robert Hooke was the first scientist who named that part as cell. And what is the actual meaning of cell? Cell means a tiny room. ठीक है. इसके बाद में in 1838 children proposed that all plants are made up of cell. After that Sean proposed that all animals are made up of cell. उसके बाद में next point लिखो, the cell theory of life was proposed by Sheldon and Sean. सेल थ्योरी ऑफ लाइफ वॉज प्रपोज्ड बाय व्हाट? शिल्डन एंड शॉन. ये पॉइंट्स लिख लो नोटबुक में, वीडियो को पॉज करके. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी द सेल थ्योरी ऑफ लाइफ. नॉट वेरी डिफिकल्ट. जितने उसके साइंटिस्ट के नाम है उतना डिफिकल्ट तो डेफिनेटली नहीं है. द सेल थ्योरी ऑफ लाइफ. The cell theory of life. What does this theory indicates? Number one, there are some postulates or points in which this theory is explained. Number one is all living organisms are made up of cells. Made up of cells. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, अभी डेफिनेटली वो ड्यूरेशन में वायरसेस लोगों ने ढूंढे नहीं थे. सो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल थ्योरी ऑफ लाइफ इज दैट all living organisms are made up of what? Cells. All living organisms are made up of cells. This is the first point of cell theory of life. The second point is that all living organisms are made up of cells. The second point is that all the activities performed by an organism takes place inside the cell. Okay, or you can say that a cell is the basic structural and functional unit of life. Structure से ये पहला जो point है ना, ये indicate करता है कि cell सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर जो है वो सेल से बना हुआ होता है. मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि ए सेल इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. A cell is a structural unit of life. This is the first point. A cell is the structural unit of life. This is first point. Second, all activities of a living organism takes place inside itself. Okay, all the activities, जितनी भी एक्टिविटीज, जो भी फंक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है उसकी बॉडी में, वो सारे के सारे फंक्शंस कहाँ पे किए जाते हैं? सेल्स के अंदर किए जाते हैं. सो इट मीन्स व्हाट? यू कैन राइट दैट ए सेल इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. फंक्शनल यूनिट of life. This is the second point of cell theory of life. And third point is that a cell is produced from a pre-existing cell. एक सेल कैसे बनती है? प्री एग्जिस्टिंग सेल, दूसरे किसी सेल से ही एक नई सेल क्या हो सकती है? बन सकती है. सो ए सेल is produced from a pre-existing cell
ओनली। और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, बनाने फैक्ट्री में, ये फैक्ट्री में क्या बनाए जाते हैं, बेल बनाया जाता है, यू कैन नॉट से लाइक दैट। क्यों? हाँ, रिप्रोडक्शन के मेथड से बन सकते, कोई भी सेल उसका 2 पार्ट में डिवीजन कौन कर सकता है, सिर्फ वो सेल कर सकती है, बाकी बाहर से आप सेल्स किसी फैक्ट्री में नहीं बना सकते हो। सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए प्री एग्जिस्टिंग सेल only, and that is one of the important postulate of cell theory of life. Okay, so what is the cell theory of life? Point number 1, all living organisms are made up of cell, so cell is the structural unit of life. Second, all activities of a living organism takes place inside its cell. All activities takes place inside its cell, that is cell is the functional unit of life also. And a cell is produced from a pre-existing cell. एक सेल जो है वो ही दूसरे सेल को क्या कर सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है, रिप्रोड्यूस कर सकती है। A cell is reproduced from a pre-existing cell only. Okay, so these are postulates of cell theory of life that you have to write into your notebook. लिख लो। हो गया? See the next point. Now we are going to see the definition of cell. Next point is definition of cell. What is a cell? A cell is a structural and functional unit of life. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप कंसिडर करते हो, उसकी जो बॉडी है, दैट बॉडी इज मेड अप ऑफ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट एंड दैट इज कॉल्ड एज सेल। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखो कि यहाँ पे 2 टर्म्स आई। डेफिनेशन सिंपल है, ये डेफिनेशन आपको कहाँ से मिली, सेल थ्योरी ऑफ लाइफ से मिली। यहाँ पे 2 चीजें, मतलब आपको क्वेश्चन आ सकता है जो आपको लिखना भी है, होमवर्क भी करना है। आई एम नॉट गोइंग टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाई ए सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों बोला जाता है, बोलो क्यों बोला जाता है? स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट मतलब फॉर एग्जांपल वॉल, आप सभी ने देखी है वॉल कैसे बनती है, वॉल या फ्लोर देख लो आप। वॉल जो है एक छोटी छोटी ईंट, एक के बाजू में दूसरी, दूसरे के बाजू में तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, उसके बाद में सेकेंड रो, है ना। ऐसे ब्रिक्स एक दूसरे को अटैच कर करके उससे क्या बनती है, वॉल बनती है ना। तो इसमें कि एक ब्रिक अगर आपने कंसिडर की, 1 का मतलब होता है यूनिट, 1 का मतलब होता है यूनिट, है ना। जिस यूनिट से किसी चीज का स्ट्रक्चर बनता है, बॉडी बनती है, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रक्चरल यूनिट। जैसे वॉल के लिए स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, ब्रिक है। अगर आपने टाइल्स फ्लोर कंसिडर किया, इसके लिए स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, टाइल है। अगर आपने कोई भी चीज, सिंपल ब्लॉक का जो गेम्स होता है, उसमें भी एक छोटा सा ब्लॉक आप जिससे स्ट्रक्चर बनाते हो, बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो हर चीज जो बनी हुई होती है ना किसी स्मॉल पार्टिकल से बनी हुई होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये चॉक, ये चॉक का सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा है, इसे हम बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं, एटम है, मॉलिक्यूल्स है। दीज आर स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग्स। जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं ना, उनके स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, है ना। इन द सेम मैनर जो लिविंग थिंग्स होते हैं, लिविंग थिंग्स का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है, दैट वी कॉल एज सेल। उसे हम क्या बोलते हैं, सेल। जिससे स्ट्रक्चर बनता है उसे हम बोलते हैं सेल, जिससे स्ट्रक्चर बनता है उसे हम बोलते हैं सेल। और स्ट्रक्चर की वजह से दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। उसके बाद में व्हाई इट इज कॉल्ड एज फंक्शनल यूनिट, सेल की जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस है, सारी की सारी एक्टिविटीज कहाँ पे बनती हैं, ऑल दिस एक्टिविटीज टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल।
न्यूट्रिशन फाइनली सेल के अंदर होता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है मतलब एनर्जी प्रोडक्शन की प्रोसेस सेल करती है, रिप्रोडक्शन सेल करता है, ग्रोथ सेल के डिवीजन की वजह से होती है। जितनी भी एक्टिविटीज किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होती हैं, ऑल आर रिलेटेड टू व्हाट, ऑल दिस एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू सेल, है ना। So all the functions in the body of a living organism are controlled by its cell. That is why a cell is called as functional unit of life. Okay, that is why a cell is called as functional unit of life, and because of which there is the definition of cell. What is a cell? Is the structural and functional unit of life. ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। डेफिनेशन हमने आज देख ली, बाकी का जो पोर्शन है वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। Bye.